they are known as that means the small fraction of atoms or a small portion of the atoms which are responsible for the stimulated emission. ठीक, they are known as the active centers. और जो rest of the material रहता है, they acts as the host. ये मैंने बताया था last class में, right? अब क्या जरूरत है हमको? We want number of atoms in the excited states to be more than the number of atoms in the ground state. Clear? उसके लिए जो है सबसे जरूरी चीज होता है उसको क्रिएट करना पड़ता है. You have to create an artificial situation which is known as population inversion. और उसको बनाने के लिए हमको मदद करता है तुम्हारा मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट कुछ नहीं है, एक ऐसा एक्साइटेड स्टेट है जहां पे एटम्स थोड़ी देर ज्यादा देर तक रुक सकता है क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम कम होता, थोड़ा ज्यादा होता है. मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -3 सेकेंड. तो क्या होता है कि it allows large number of atoms to be accumulated over there to establish the condition of population inversion. And how it is done, as I have told you, कि जो excited state है, they are short-lived state. वहाँ पे ज्यादा देर atoms नहीं रह सकता, तो वो नीचे जो खाली पड़े जगह है ना, वहाँ पे वो जंप करेगा, emitting out energy. तो जो नियरेस्ट उसको एनर्जी लेवल मिलेगा ना, उसमें वो जंप कर देगा. Because it is jumping by spontaneous emission, so it will look for a place which is convenient. So it will jump to a nearby state which is vacant, left vacant. And similarly, the atoms which are excited from the ground state accumulates in the metastable state. The empty remaining state just below the excited state becomes your metastable state because it is very convenient for the atoms to move into that state and accumulate over there. And when this thing happens, it creates an artificial condition which is known as population inversion. Now, what is this population inversion? मेटास्टेबल स्टेट में बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि एटम्स आर गेटिंग एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट वेयर इट कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग. So the atoms jumps to a nearby empty state which becomes your metastable state and start accumulating over there. And with a very short time, it has been found that the population of metastable state exceeds that of the ground state. तो ये एक non equilibrium state create हो जाता है and you find that the distribution of atoms has been inverted. What is expected that the lower energy levels will have more number of atoms as compared to the higher energy levels. This is the actual condition, okay, which is the known as the equilibrium state. First, the ground state energy level should be completely filled. The higher state energy level should be empty. Here, an non-equilibrium state has been created because we find that atoms in the metastable state is exceeding that of the ground state. So you find that atoms in the excited state is more. That means upper energy level is more as compared to the ground state. So you say that a population inversion condition has been obtained. And this is very essential for laser action because it helps in stimulated emission. ठीक है, यहीं तक अपन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे. वो सबको क्लियर था? यस मैम. सबको क्लियर था? कोई है जिसको नहीं समझ में? You have gone through this. बेटा अब जो है ना, एक दो लेक्चर में मैं सीधा डायरेक्ट अब आप लोग को लेजर्स पढ़ाऊंगी, है ना. सीधा रूबी लेजर, एनडीवाईएजी लेजर पढ़ाऊंगी. तो क्या है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो हम आगे की तरफ नहीं देख सकते. So it is very essential that you should understand what is metastable state, what is population inversion, what is active center. और ये सारी चीजों का दो नंबर या चार नंबर का पूछा जाता है. ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट पूछेंगे तो 2 नंबर का पूछेंगे. पॉपुलेशन इन्वर्जन का अगर पूछेंगे तो जो मैंने आपको
लिखाया है विद डायग्राम दैट इज 2-3 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग को बनना चाहिए, यू शुड बी, दैट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, है ना। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो यू गेट योरसेल्फ क्लियर। सब लोगों ने लाइब्रेरी से बुक इशू किया है? नो मैम। नो मैम। नहीं किया? क्यों? कोई भी नहीं किया? मैंने आपको बताया था ना क्षीरसागर बहुत सारी कॉपी रख के ले लो। क्यों नहीं किया भाई तुम लोग? कोई जवाब ही नहीं देता, कोई नहीं किया है? मैम मैं दूसरे सिटी से हूँ तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। मैं ये वाला यूनिट बेटा यही पढ़ा रही हूँ, मतलब इसी बुक से पढ़ा रही हूँ, क्षीरसागर से। तो बुक रहेगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। बताओ, 60 बच्चों का स्ट्रेंथ है और कोई अटेंड ही नहीं करता। भिलाई वाले नहीं है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम भिलाई? मैम आयुष। आयुष भिलाई से हो? कहाँ पे हो? मैम प्रगति नगर। आ सकते हो तो आके बुक इश्यू कर लो ना। सिर्फ आयुष ही है क्या भिलाई से, बाकी सब बाहर से है? नो मैम। हो ना? मैम कैलाश लोगो। बेटा आप लोग बुक इश्यू करिए, पढ़ना चालू करिए। इवन रायपुर पीपल कैन कम, लॉकडाउन तो खुल गया है अभी। बुक इश्यू करने तो आ सकते हो ना आप लोग। मैथ्स का भी बुक सर ने बताया होगा आप लोग को, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स की भी बताए होंगे आपको। सिर्फ पीडीएफ के भरोसे नहीं पढ़ पाओगे ना आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे पढ़ोगे आप लोग। मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं तो कराऊंगी, लेकिन एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है क्या? खुद से समझने के लिए बुक्स भी पढ़ना पड़ता है क्या? जरूरी है, कुछ चीजें आप लोग रखिए अपने पास। मुझे किसी बच्चे ने फोन भी किया था कि क्षीरसागर को डाउनलोड करना था ना, उसको मिला था क्षीरसागर? आई डोंट रिमेम्बर हु इज यू इट वाज। आप लोग थोड़ा सीरियसली लीजिए बेटा। और एक चीज याद रखिएगा, इस पैंडेमिक सिचुएशन के आगे जो भी होगा ना, उसमें वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो अपने आप को मोटिवेट करके इस सिचुएशन में आगे लेके जाएंगे। लेकिन हार के अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो इतना हुआ है, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एवरीथिंग आई मतलब एक्सपेक्ट की चलो ठीक है यार हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर स्टूडेंट्स, बहुत यंग हो आप लोग, तो पढ़ाई यार छोड़ो ना, ऐसी तो पास हो जा रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ क्या टैग लगेगा, यू नो दैट? अरे आप लोग उस ईयर के हो जब कोरोना था, जो अब आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। अरे आप लोग तो ऐसे ही पास हो गए हो, आप लोग को क्या आता होगा? आप लोग को तो कुछ नहीं आता होगा। ये सुनना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चीज है, मालूम है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये सुनना पड़ेगा ना आप लोग को, जब भी आप लोग नौकरी के लिए जाओगे ना, अपना ये दिखाओगे, एडमिट, व्हाट यू कॉल दैट, अरे यार नाम भी याद नहीं आता टाइम टाइम पे, सर्टिफिकेट। मार्कशीट, है ना, सर्टिफिकेट्स, जो भी आप लोग दिखाओगे ना, द फर्स्ट थिंग दे विल टेल यू, जो भी बोला जाएगा सबसे पहले, अच्छा आप लोग को पैंडेमिक पीरियड के हो क्या? तब तो आप लोग क्या ही पढ़ाई किए होंगे। सो ओनली दोज फ्यू स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत भी जो है एटलीस्ट नॉलेज लेके आगे जा रहा होगा ना, वही उसको काम आएगा। तो यू हैव टू स्टडी, यू कैन नॉट टेक इट लाइक दैट, अब तक घर में बैठे क्या करना है, because things are going down, you know, your education standard is going down। और हर जगह का है, सिर्फ आप लोग का नहीं बेटा, IITs का भी है, बहुत बुरा हाल है सब जगह। अगर ऐसे करेगा, मुझे भी मालूम है चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो, आई हैव गॉन थ्रू योर पीरियड्स। पढ़ना किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन मजबूरी है ना, करना पड़ता है ना। एवरीवन कांट बी अ हीरो और समथिंग एल्स, राइट?
और हीरो लोग को भी आजकल हालत खराब है, पिक्चर तो आ ही नहीं रही है. Situation is grim everywhere. If you have gone through the news, you can see that only 3% of the population have an increase in their annual income. 70% का जो है एनुअल इनकम डिक्रीज हो रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में. यहाँ पे आप लोग को अपने आप को अपडेट रखना है. इट्स नॉट दैट कि मैं आप लोग को भाषण दे रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो. मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो माइक को भी बंद कर दियो. हाँ, छोड़ो, रहने दो, नहीं सुनना करके. बट इट्स नॉट लाइक दैट बेटा. आप लोग को बुक्स लेना है, कॉपीज में लिखना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. बिकॉज फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम दिस वीक इटसेल्फ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जो जनरल जो लेजर्स है. ये तो शुरुआत का बेसिक थिंग्स व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग. लेजर्स आई विल स्टार्ट. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट विल यू राइट, सब चीज थोड़ी रट्टा मार सकते हो, है ना. तो आपको तो समझ के भी लिखना पड़ेगा. तो समझना बहुत जरूरी है एंड वेरी essential that you go through books. जितना ज्यादा बुक्स रीड करोगे, it will be that much of help to you and you people know that better than me, right? चलिए आगे हम लोग देखते हैं. कहाँ थे हम लोग? Population inversion. Next topic was on pumping. Now what is this pumping? अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमको एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करना है which is known as population inversion. ठीक, हमको मालूम है मेटास्टेबल स्टेट, उसके लिए मेटास्टेबल स्टेट की जरूरत पड़ती है, एक्टिव सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया. नाउ यू नीड टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सिचुएशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, एंड यू हैव टू मेंटेन इट. जिसके लिए बहुत एसेंशियल है कि एटम्स जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट्स तक जंप करें. एटम्स मूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट कंटिन्यूअसली, so that you have a large accumulation of atoms in the metastable state. ठीक है, तो इसके लिए हमको एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो मेटास्टेबल स्टेट में चढ़े जाएगा, है ना. तो एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चढ़ाने के लिए हमको मालूम है वी नीड एनर्जी. और ये एनर्जी देने का जो काम होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज डन विद द हेल्प ऑफ पंपिंग. ठीक है, दैट इज for maintaining the condition of population inversion, the atoms have to be raised continuously to the excited states. It requires energy to be supplied to the system. The process of supplying energy to the medium with a view to transfer it into the state of population inversion is known as pumping. ठीक है, so the most commonly used pumping techniques are, ये हम लोग यूज करेंगे जब हम लेजर पे जाएंगे ना. देखना, पंपिंग बहुत ही एसेंशियल है. तो हम दो प्रकार की पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं, आइदर ऑप्टिकल पंपिंग या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ऑप्टिकल पंपिंग कुछ नहीं होता. ऑप्टिकल पंपिंग में ह्यूज लाइट, एकदम से ना खूब सारी रोशनी जो है ना, वो जो सिस्टम है उसके ऊपर छोड़ा जाता है. A light source such as flash discharge tube is used in solid state lasers में ऑप्टिकल पंपिंग का इस्तेमाल होता है. तो इसमें एकदम से खूब सारी रोशनी, क्रिप्टॉन लैम्प, ऐसे लैम्प्स की इस्तेमाल होता है, ज़ीनॉन लैम्प्स का इस्तेमाल होता है. एकदम से खूब सारी रोशनी जो है ना, वो एटॉमिक कंडीशन, एटॉमिक स्टेट्स पे डाला जाता है, सब्सटेंसेस पे डाला जाता है, so that those atoms which are bound to the ground state, मतलब वो वहां से निकलता है. जैसे आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है ना, the same way they jump from the ground state to the excited state. And for that a huge flash light is required, which is given with the help of optical pumping, and mostly it is used in solid state laser. Electrical discharge में कुछ नहीं होता. उसमें क्या है, करंट पास किया जाता है so that it just ionizes the medium. और आयोनाइजेशन जैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही टूटता है तो एटम्स जो है, ये गैस लेजर में पाया जाता है, एटम्स जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है. तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्निक इज यूजुअली यूज्ड इन गैस लेजर. तो सबको क्लियर है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, व्हाट इज ऑप्टिकल पंपिंग. दो प्रकार का पंपिंग सिस्टम होता है, एक ऑप्टिकल पंपिंग होता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है. Is it clear to everyone?
मैम ये दोनों अलग कैसे है, एनर्जी और पंपिंग? एक देखो देखो अगर सॉलिड स्टेट लेजर यूज हो रहा है तो आप किसी एक को यूज करोगे, ऑप्टिकल पंपिंग को एक ही मतलब पंपिंग स्कीम चाहिए आपको, एक ही पंपिंग सोर्स चाहिए, दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते, अलग अलग ही यूज करना है ना। जैसे गैस लेजर है तो आप जो है गैस ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज करते हो, लेकिन जो सॉलिड स्टेट लेजर होता है उसके लिए हम लोग जो है ऑप्टिकल पंपिंग स्कीम यूज करते मैम ऑप्टिकल पंपिंग थोड़ा सा और बता दीजिए। हैं। ऑप्टिकल पंपिंग कुछ नहीं, लाइट है, लाइट सोर्स है जो एकदम से खूब सारी रोशनी जो है जो मीडियम पे, एक्टिव मीडियम पे डाला जाता है, तो क्या होता है एक्टिव सेंटर्स के जो एटम्स है वो एक्साइट हो जाता है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। तो ऑप्टिकल पंपिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ xenon लैम्प, क्रिप्टॉन लैम्प, ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे। हाँ बोलो। मैम जिस तरह से फोटोन है उसी तरह से ये भी ऑप्टिकल पंपिंग भी वो है। क्या है, वो भी तो लाइट ही है बेटा, यस मैम वो वही दोनों। यस मैम। लाइट है, लेकिन यहाँ पे एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड। क्यों? क्योंकि हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए ना बेटा, तो वी वांट यस मैम दैट अ एक्साइट नंबर कराना। ऑफ एटम्स बी रेज्ड टू द एक्साइटेड स्टेट, फॉर दैट यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट फोटोन्स। ठीक है। यस मैम। हाँ, अब पंपिंग के में एक और चीज आता है दैट इज प्रिंसिपल पंपिंग स्कीम। ओके, यू नीड प्रिंसिपल पंपिंग स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा 3 लेवल पंपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ओके जब हम लोग अलग अलग प्रकार के लेजर्स को देखेंगे ना, तब हम लोग खुद समझ जाएंगे इस चीज को कि बाय पंपिंग स्कीम इज रिक्वायर्ड। क्योंकि आप देखोगे मैं एक एक अलग अलग लेजर जब बताऊंगी तब आपको मैं ये बताऊंगी व्हाट आर द मटेरियल दैट मींस एक्टिव सेंटर्स कौन कौन सा एक्टिव मीडियम कौन सा है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कौन सा पंपिंग स्कीम यूज हो रहा है, वेदर इट इज ऑप्टिकल पंपिंग, और उसमें कौन सा सोर्स यूज हो रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। उसके अलावा जो है जो ऑपरेशन जो है उसको समझाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट, एनर्जी लेवल कॉन्सेप्ट। तो एनर्जी लेवल कॉन्सेप्ट में ही आपका आता है ये पंपिंग स्कीम। या तो लेजर 3 लेवल पंपिंग स्कीम से काम करता है या फिर 4 लेवल पंपिंग स्कीम से काम करता है, जिसको अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, दैट इज द पंपिंग स्कीम। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पीडीएफ टुडे। ये दिख रहा है आप लोग को बेटा, स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 3 लेवल पंपिंग। आपको देखो वो पिछले पीडीएफ में जो है ना उसका हेडिंग आ गया है पंपिंग स्कीम, और उसके बाद है तुम्हारा 3 लेवल पंपिंग, उसमें लिखा हुआ है ना। ये इस पीडीएफ में हम 3 लेवल पंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 3 लेवल पंपिंग। तो आप नाम से ही समझ सकते हो 3 लेवल पंपिंग मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली 3 एनर्जी लेवल, इसमें एनर्जी लेवल जो है हमारा यूज हो रहा है। देखो फिगर क्लियरली दिख रहा है आपको? यस मैम। यस यही चीज मैं आप लोग को बोल रही थी, अगर आप लोग के पास बुक होता है ना तो फिगर और अपने बुक खोल के देख लेते, उसी से तो मैं करा रही हूँ। मैम इसमें भी क्लियर है। ठीक है, चलो इसमें दिख रहा है ना, we are considering 3 energy levels, E1, E2 and E3 दिखा? यस मैम। यस मैम। ओके, जो E1 है वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब लेजर एक्शन होता है ना तो E1 को हम लोग लोअर लेजिंग लेवल के नाम से बताते हैं। ठीक, लेजिंग एक्शन के वक्त में जो लेवल लेजर एक्शन में ऑपरेट होता है वो नीचे वाला लेवल बन जाता है तुम्हारा लोअर लेजिंग लेवल। ठीक,
जो टॉप मोस्ट एक्साइटेड स्टेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पंपिंग लेवल। एक्साइटेड स्टेट जो रहता है ना, जो सबसे ऊपर वाला रहता है, दैट इज E3, जिसको लेजर एक्शन के दौरान उसको कहा जाता है पंपिंग लेवल। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और जो मेटास्टेबल स्टेट दैट इज E2 जो बन रहा है वो कहलाता है तुम्हारा अपर लेजिंग लेवल। ठीक? क्लियर विथ एवरीवन? That means in 3-level pumping scheme, we have considered atomic system having 3 energy levels. Okay? We have considered an atomic system having 3 energy levels. The state E1 is the ground state. वो दिख ही रहा है, ग्राउंड स्टेट है, जिसको हम बाद में लोअर लेजिंग लेवल बोलेंगे। E2 and E3 are the excited states. ठीक? और हम ये देख रहे हैं जो इस वाले स्कीम में रहता है, इसमें क्या किया जाता है, एटम्स को जो है ग्राउंड स्टेट से अपर मोस्ट एक्साइटेड स्टेट E3 में हम एक्साइट करते हैं व्हेन वी पंप it with energy equals to E3 minus E2 upon H. इसका पीडीएफ मैं ना आज शाम को आपको सेंड करूंगी, अच्छे से फोटो खींच के सेंड कर दूंगी। ठीक है? आज शाम को मैं इसका पीडीएफ अच्छे से खींच के भेज दूंगी आप लोग, तो उसमें से आप लोग उतार लेना। ठीक है? जब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल्स टू E3 माइनस E2 अपॉन H जब इस सिस्टम पे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, E3 में एटम्स एक्साइट होके पहुंच जाता है ना? लेकिन हमको मालूम है जो अपर मोस्ट स्टेट E3 है वो स्टेबल स्टेट नहीं है, वहां पे एटम ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता। ठीक है? तो एटम्स जो है इट मेक्स एन डाउनवर्ड ट्रांजिशन टू द E2 लेवल। वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा E2 लेवल में डाउनवर्ड ट्रांजिशन करता है। सिंस E2 जो है वहां पे एटम्स ज्यादा देर तक रुक पाता है, सो दैट लेवल बिकम्स योर मेटास्टेबल स्टेट। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, पंप हो रहा है और क्या होगा, E3 में जा रहा है एटम्स, E3 में ज्यादा देर रुक नहीं पा रहा है, E2 में एटम्स इकट्ठे होने लगते हैं। और ये सिचुएशन कंटिन्यू होता है जब तक हम पंपिंग करते रहेंगे। और कब तक हमको कंसिडर करना है, जब तक नीचे वाला जो लेवल है, नीचे वाला लेवल मतलब E1 लेवल से more than half of the atoms gets accumulated in the metastable state. अब जब ये सिचुएशन अपने को मिलता है, we say that population inversion is achieved between the state E1 and E2, है ना? जब पॉपुलेशन इन्वर्जन किन दोनों के बीच में अचीव हुआ, E1 और E2 के बीच में अचीव हुआ, जहां एटम ज्यादा है E2 लेवल में, कम है E1 लेवल में। इसलिए E2 लेवल बन जाता है अपर लेजिंग लेवल और E1 बन जाता है तुम्हारा लोअर लेजिंग लेवल। अब क्या है, अब सिर्फ एक कहीं से एक फोटोन की जरूरत पड़ती है टू ट्रिगर स्टिमुलेटेड एमिशन। जस्ट अपने को E2 में इतने एटम्स इकट्ठे हो गए ना, वहां से थोड़ा सा एक धक्का बस आपको देना है, वो एकदम से भड़बड़ाते हुए पूरे एटम्स जो है एक ही डायरेक्शन में बाहर निकलते हैं एज अ हाईली कॉल्यूमेटेड कोहेरेंट लाइट बीम व्हिच इज योर लेजर सोर्स। तो व्हाट यू नीड, E2 जो मेटास्टेबल स्टेट में है वहां पे एक फोटोन से ट्रिगर करना पड़ता है। नाउ अ फोटोन ऑफ एनर्जी H nu equals to E2 minus E1 can trigger stimulated emission of atoms at E2, can trigger stimulated emission of atoms at, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो पूरा चीज क्लियरली इसमें मेंशन्ड है। आप अगर आपको इसको पढ़ोगे ना तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, है ना? कैन ट्रिगर what I was saying, हाँ। Now a photon of energy H nu equals to E2 minus E1. E2 minus E1 can trigger stimulated emission of atoms at E2. Okay, मतलब you have to
create the condition of population inversion first, and then stimulated emission can be triggered with the help of a photon. और जैसे ही अपने ये चीज होता है, you get laser output and all the atoms move together as a highly collimated light beam. ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये पूरे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये सिंपल जैसे मैंने पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्सप्लेन किया था, इट्स लाइक दैट ओनली, इट्स सेम। यहाँ पर भी 3 लेवल यूज हो रहा है, ग्राउंड स्टेट, उसके ऊपर वाला स्टेट, उसके ऊपर वाला स्टेट, है ना। ग्राउंड स्टेट से टॉप मोस्ट लेवल जो है तुम्हारा एक्साइटेड लेवल है, उसके जो खाली लेवल था वो बाद में जो है मेटास्टेबल स्टेट बन जाता है जब उसमें एटम्स इकट्ठा होने लगता है। तो लेजर एक्शन के लिए जो ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट आपका स्टिमुलेटेड एमिशन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि एक मोटा एरो बना हुआ है, मोटा एरो बना हुआ है, इसका मतलब लेजिंग एक्शन इज हैपनिंग बिटवीन E1 एंड E2 लेवल। और यही चीज यहाँ पे एरो देके बताया गया है कि हाउ लेजिंग एक्शन इज बीइंग टेकन, ठीक है। लेकिन 3 लेवल पंपिंग के साथ एक ड्रॉबैक है बेटा। क्या ड्रॉबैक है? पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में बहुत समय लगता है और बहुत ज्यादा ऑप्टिकल पंपिंग की जरूरत पड़ती है। यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग to achieve population inversion, because you need to empty more than half of the ground state atom to the excited state to achieve population inversion. So that takes a huge amount of power, huge amount of energy to do so. Therefore, and 3 level pumping जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि population inversion अचीव करने में आपको समय लगता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्लियर योर डाउट्स। किसको क्या पूछना है पूछिए। थ्री लेवल पंपिंग को, 3 लेवल पंपिंग सबको समझ में आया बेटा? 3 लेवल पंपिंग? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है सबको, है ना? आपको समझ Yes, में आया ma'am. लेजर कहाँ से निकल रहा है, लेजर कहाँ से आउटपुट निकलेगा? बिटवीन E2 एंड E1 लेवल, है ना। स्टिमुलेटेड एमिशन वहीं पे होगा, तो वहां से आपको लेजर आउटपुट मिलेगा। ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल पहुंचेंगे ना, जब प्रैक्टिकल लेजर्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि इन दोनों लेवल के बीच में जो कंडीशन अचीव होता है जिसके कारण हमको लेजर आउटपुट मिलता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि देयर इज वन ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद 3 लेवल पंपिंग। एक तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ, है ना। क्यों? क्योंकि हमको ग्राउंड स्टेट से आधा से ज्यादा एटम्स को खाली करना है। मोर देन हाफ ऑफ द एटम्स हैव टू बी एक्साइटेड टू द टॉप मोस्ट लेवल और पंप लेवल, वहां तक चढ़ाना है। तो यू ऑब्वियसली यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इजीली अचीव नहीं हो पाता है, इसको टाइम लगता है होने में। और कोई चीज करने में टाइम लगता है तो कंटिन्यूटी इफेक्ट होता है। कंटिन्यूटी इफेक्ट होता है तो आपको लेजर जो आउटपुट होता है वो आपको कंटिन्यूस नहीं मिल पाता, रुक रुक के मिलता है। इसलिए 3 लेवल लेजर उतना इस्तेमाल में नहीं आ पाता। सबको क्लियर है? कोई भी बेटा किसी को नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट लेजर, है ना। लेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं मैं अभी से एक बार बताती हूँ। स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक। दूसरा एक्टिव सेंटर, तीसरा मेटास्टेबल स्टेट, चौथा पॉपुलेशन इन्वर्जन, और नेक्स्ट है तुम्हारा पंपिंग स्कीम, जो समझ में आना चाहिए। अभी तक जितना पढ़ाया उसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो 3 लेवल लेजर पंपिंग स्कीम, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम पंपिंग स्कीम में कंटिन्यूअस इमिशन नहीं होगा लेजर का? 3 लेवल में नहीं होगा। अभी मैं 4 लेवल बताने वाली हूँ ना, अभी तो 3 लेवल बताया, ठीक है। सबको क्लियर है? मैं 4 लेवल पे जाऊं? Yes, ma'am. आप लोग हो भी क्लास में? ये गर्ल्स लोग सब कहाँ गए? हमारे क्लास में लड़कियां नहीं है? यस मैम। Yes, ma'am. तो आप लोग अटेंड कर रहे हो कि इधर उधर घूम रहे हो?
मैम कर रहे हैं attend। अटेंड। मैम कर रहे हैं अटेंड। क्या होता है बेटा मालूम है स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों लोग का ना किसी का भी वीडियो ऑफ हो जाता है ना, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने उठा स्कूल के टीचर्स ने उठा के उनको बाहर निकाल देते वो करके। लेकिन कॉलेज में आप लोग इतने बड़े हो गए होते हैं ना कि आप लोग के ऊपर दादागिरी दिखाना इज नॉट ओके, because it is expected that since you are approaching the 18 years category, you can take your own decision and it is up to you to do whatever you want to do. I cannot or nobody can compel you or force you to do anything. So it is up to you to attend, सब तुम्हारे ही हाथ में। But still आप लोग अभी भी छोटे हो, है ना? You are not matured enough to take your own decision. सो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट सिर्फ ऑनलाइन से नहीं होता। ऐसा कोई है तुम्हारे क्लास में जो बिल्कुल बिना देख के बनाया होगा, सब खुद ही से बनाया पेपर, क्वेश्चन पेपर? इज देयर एनीवन और एवरीबॉडी हैज सीन? बिना पढ़े आप लोग एग्जाम दिए क्या? थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े? कोई नहीं, सब बिना पढ़े एग्जाम दियो? मैंने तो अपने बेटे को ठोक मतलब बहुत रोया गाया है, लेकिन उसको ठोक पीट के मैंने उसको पढ़ाया। हाँ, छोटा है इसलिए कर सकती थी मैं। हाँ, मैं बोली नहीं, बिना पढ़े आप एग्जाम नहीं दोगे। तो उसने खुद से पढ़ के ईमानदारी से एग्जाम दिया एंड ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मेरे सारे फ्रेंड्स लोग देख देख के एग्जाम दे रहे हैं और आप मेरे को फोर्स कर रहे हो। बट इट वाज वेरी एसेंशियल यू नो, अदरवाइज उसका तो बेसिक है, कैसे करेगा वो अभी से नहीं समझेगा तो, इसलिए एसेंशियल है। तो आप लोग के पेरेंट्स ने आप लोग को डांटे नहीं है? कोई नहीं बोला पढ़ने के लिए? कोई जवाब ही नहीं दे रहा? दैट मीन्स यू हैव गॉट वेरी गुड पेरेंट्स। मैम बोले थे ना। तो पढ़े नहीं थे? बोले थे तो पढ़ाई नहीं किए? अरे बड़े अच्छे पेरेंट्स लोग हैं, तुम लोग अलाउ भी कर दिए, गुड वन। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ 4 लेवल पंपिंग। ओके, फोर लेवल पंपिंग स्कीम। ठीक, अब ये 4 लेवल पंपिंग स्कीम में आपको शुरू में ही दिख रहा है कि 4 एनर्जी लेवल्स आर टेकिंग पार्ट in the operation, laser operation. The ground state E1, then E2, E3, E4. दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, 4 लेवल है मतलब 4 लेवल इस्तेमाल हो रहा है। 4 एनर्जी लेवल्स, E1, E2, E3, E4, है ना? जब हम लोग इसमें ऑप्टिकल पंपिंग या कोई भी मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी यूज करते हैं, ओके, तो पंप के कारण एनर्जी जो इम्पार्ट कर रहे हो, जिसके कारण क्या होता है, एक्टिव सेंटर से एटम्स एक्साइट होके ग्राउंड लेवल से E1 से कहाँ चले जाएगा? ऊपर वाले E4 लेवल पे चले जाता है, टू द अपर मोस्ट लेवल E4। और हमको मालूम है E4 में ज्यादा देर तक एटम्स नहीं रुक पाता, है ना? तो क्या होता है, इट इमीडिएटली मूव टू अ लेवल which is empty just below the topmost energy level, that is E4। तो वहां जाके इकट्ठा होने लगता है। Now we have selected an atom which is having more number of energy levels। ठीक है, according to equilibrium condition, it is expected कि atoms will be more in the ground state, है ना? हमेशा भरना है 1s2 2s2 2 पीस, ऐसे ही तो भरता है ना बेटा, आप लोग सबको पता है। शुरुआत के एनर्जी लेवल्स भरते हैं, ऊपर वाले खाली रहते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे जो है आप क्या देख रहे हो, E1 से खाली होके एटम्स जो है E4 में चले गया, E4 में ज्यादा देर नहीं रुक पाया तो वो E3 में आ गया।
लेकिन since you have considered an atom having more number of energy levels, so there is another energy level which is present just below the E3 which is virtually empty. उसमें कोई एटम नहीं है, खाली है ना? क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट भरा हुआ था, ऊपर के लेवल्स पूरे खाली थे. अब आपने फ्रीक्वेंसी इम्पार्ट करके एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया, वहां वो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाया, तो जस्ट बिलो जो एनर्जी लेवल खाली है उसमें जाके चले गया, वो वहां पे इकट्ठे होने लगा और वो बन गया तुम्हारा मेटास्टेबल स्टेट. लेकिन हमने वो एटम को कंसिडर किया जिसमें ज्यादा एनर्जी लेवल उपलब्ध है. यू फाइंड देयर इज अनदर एनर्जी लेवल E2 which is virtually empty and it is lying just below E3, है ना? एक्सपेक्टेड क्या होता है, E1 पहले भरेगा, फिर E2 भरेगा, फिर E3 भरेगा, फिर E4 भरेगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, E3 पहले भर गया और E2 खाली बैठा हुआ है. E2 जो है पूरा खाली है और E3 जो है तुम्हारा भर गया. तो इसके कारण क्या होता है, इमीडिएटली पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड बिटवीन E3 एंड E2. तो E3 लेवल तुम्हारा अपर लेजिंग लेवल बन जाता है और E2 लेवल जो है तुम्हारा लोअर लेजिंग लेवल बन जाता है. जरा सा एटम ही E3 में इकट्ठा हुआ, लेकिन इमीडिएटली क्या हुआ, तुम्हारा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया बिटवीन E3 एंड E2, क्योंकि E2 तो खाली पड़ा हुआ. तो होना क्या चाहिए था, E2 को पहले भरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे E3 भर गया है, E2 तुम्हारा खाली पड़ा हुआ है. दैट मींस पॉपुलेशन इन्वर्जन हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन E3 एंड E2. अब कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रिगर the number of atoms accumulated in the level E3 by a photon and which can start the chain of stimulated emission. ठीक है? अब क्या होगा, जैसे स्टिमुलेटेड एमिशन मिल गया आपको, लेजर आउटपुट मिल गया और यहाँ पे आप पंपिंग कर रहे हो. पंपिंग मतलब एनर्जी इंपार्ट कर रहे हो. E1 से एटम्स एक्साइटेड लेवल में जा रहा है, इमीडिएटली इट इज कमिंग टू E3. हाँ, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है ना. पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है इमीडिएटली क्रिएट हो जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है क्रिएट होने के लिए, तुरंत क्रिएट हो रहा है. सो इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस, हेल्प्स इन कंटिन्यूअस ऑपरेशन of laser, because you will find that population inversion can be achieved very easily. Okay, so what we have found in 4-level pumping, that pumping lifts the active centers from the ground level E1 to the uppermost energy level E4. And you know that from the pump level E4, since it is short-lived state or unstable state, the atoms rapidly falls to the metastable state E3. And you find that the population at this state grows rapidly while the level E2 is virtually empty. Therefore, population inversion is achieved between the state E2 and E3. And a photon of energy h nu equals to E3 minus E2 can start a chain of stimulated emission. And this is your 4-level pumping schemes explanation. अब बताओ, क्लियर है सबको 4 लेवल में क्या हो रहा है? मैम E2 में तो एटम्स आके गिरेंगे ना? नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे बताओ? मैम वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन है, वहाँ पे है भी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब डेंसिटी है एटम्स की E3 में, तो वहाँ से आके नहीं है, E3 में बढ़ रहा है ना. देखो, हमने एक ऐसे एटम को कंसिडर किया जिसका 4 लेवल पंपिंग स्कीम में काम आ सकता है, लेजर ऑपरेशन में काम आ सकता है, जिसमें ग्राउंड लेवल पूरा भरा है और ऊपर के लेवल पूरे खाली पड़े हैं. ठीक है? We have considered that atoms which can have more number of energy levels. Here we have taken 4 energy levels. जिसका ग्राउंड स्टेट कंप्लीटली भरा हुआ है, ऊपर के लेवल पूरे खाली है. अब आप क्या कर रहे हो, पंप करके E1 से, ये लेजर है, इसमें आप लेजर ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हो, आर्टिफिशियली आप एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हो. तो आप पंप लगा के या फिर ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लगा के आप क्या कर रहे हो, एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा रहे हो. वहां वो ज्यादा देर रुक नहीं पा रहा है, तो वो E3 लेवल में जंप कर जा रहा है. लेकिन आपको मालूम है, शुरू से ही हमने एक एटम कंसिडर किया जिसका ग्राउंड लेवल ही बस भरा हुआ है, तो ऊपर के लेवल तो खाली है. तो E3 में अब एटम पहुंच जा रहा है, लेकिन उसके जस्ट बिलो एक और लेवल है E2 जो खाली पड़ा हुआ है. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हैज बीन इजीली अचीव्ड. ठीक है?
और किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है 4 लेवल पंपिंग स्कीम? अरे हाँ या ना, कुछ तो होता है, चुपचाप मौन व्रत रखे रहते हो। यस मैम। सब भाग गए क्या? रजत यस मैम। मेरे को भेज देना बेटा स्क्रीनशॉट लेके। हाँ यस मैम। हाँ, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल, हाँ ना भी नहीं बोल रहे हो, सब इधर उधर घूमने चले जाते हो। अब मैं ना तुम लोग का वीडियो ऑन करके पढ़ाऊंगी, छोटे बच्चे टाइप करूंगी अब मैं तुम लोग के साथ। चलो कल मैं तुम लोग का जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर, आई स्टार्ट विद ऑप्टिकल रेजोनेटर टुमारो, ठीक है? यस मैम। लैंडिंग यस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग को 3 लेवल और 4 लेवल समझ में आ गया। इन केस आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे कल एक बार और आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है? आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, जस्ट गो थ्रू इट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल अगेन आस्क मी टुमारो। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टुमारो। यस मैम। ठीक, start with the resonator tomorrow. Okay students, take care, stay safe, थैंक यू goodbye. मैम। Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Bye. थैंक यू Thank you, मैम। ma'am.